Guys, am I audible to you all? आवाज आ रही है मेरी? Thank you, Shivani. Thank you, Aksa. यस सर, आपकी आवाज आ रही है। Thank you, thank you. Great, great. That's great. All right. Guys, how are you all? कैसे हैं सब? ठीक है? All right. लगता है सारे बीमार हैं because nobody responds. अच्छा, listen, guys, in this workshop, I really, really would like you people to respond and interact with us because your interaction will enhance my motivation and also it will keep me interested in this, workshop. Otherwise, it will become a little bit robotic. और इससे बेहतर है फिर आप YouTube पे there are a lot of videos you can watch and learn. So the primary purpose of this workshop is to, interact with each other so that if we have any questions or confusions, so we can ask each other. राइट? तो अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो इट विल बी ग्रेट और आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा और मुझे भी मज़ा आएगा आपके साथ ये वर्कशॉप करने में। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 आप इंटरेक्ट कीजिए। इट इज़ ओके अगर आप माइक ऑन नहीं भी करना चाह रहे, सो यू कैन राइट एंड मैं उसको यू नो आई रीड इट, ठीक है? बट योर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मी मोटिवेटेड इन दिस वर्कशॉप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। All right, okay, we'll make sure to communicate. Thank you, Filza. Thank you. Uh, all right, guys, before we start with today's session, I would really appreciate if anyone from you give a quick recap what we discussed yesterday and what did you understand from your, yesterday's class. So please, any volunteers who want to, share their feedback or reflection on yesterday's class. Yes, Ahmed, please. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ क्लियर है मेरी? Walaikum assalam. Yes, Ahmed, you are clear. ठीक है सर। कल हमने पढ़ा था सर कि व्हाट इज़ पैराडाइम क्या है हमारे पास, और डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़े थे हमने पैराडाइम के, कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पैराडाइम क्या क्या है, कौन कौन से टाइप है पैराडाइम के। फिर रिसर्च पढ़ा था। तो पैराडाइम में हमने तीन चीज़ें डिस्कस किए थे कि इंटरप्रेस जो होते हैं हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग वाले थे, और दूसरा होता पॉजिटिविज्म। और इस तीनों में हमने फिर एक चीज़ और डिस्कस की थी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में हम इस चीज़ को डिस्कस करते थे कि नेचर ऑफ द रियलिटी क्या है, हमारे पास जो चीज़ है इसकी रियलिटी क्या है, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एपिस्टेमोलॉजी में हम इस चीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे थे कि इसका वैल्यू का एक बंदे का दूसरे बंदे का व्यू क्या है। फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाटा पे बात कर रहे थे वहाँ पर। और फिर मेथोडोलॉजी पे फिर हमने डिस्कस किया था। मेथोडोलॉजी में तो हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर प्लान के थ्रू, प्रॉपर सब्जेक्ट के थ्रू हम एक चीज़ को अप्रोच करते हैं, या एग्जिस्टेंट नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए या न्यू नॉलेज गेन करने के लिए हम मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। All right, Ahmed, thank you so much. It is really the crux of yesterday's class that we discussed paradigms first. What is a paradigm? A worldview for by which we see the world or observe the world. और उसके अंदर we discussed three different components. वो भी आपने बताए and also we discussed three types of paradigm. So वो भी आपने बताए. Thank you so much, Ahmed, for your response. I would like anybody else जो कि यहाँ पे respond करना चाहें. मुसाबिहा. Musabbiha, I think. Yes. Musabbiha, can you please uh, give a feedback or reflection that what did you learn yesterday and what did we discuss yesterday? Musabbiha, are you with us? All right. I think Musabbiha has some issue. Rida Fatma. Rida, can you please respond? Okay, Musabbiha has responded. Yes, sir. Musabbiha, can you please give a reflection of what did we discuss yesterday? You can write it if you do not want to open your mic. Anybody else randomly जो भी कल जो हमने डिस्कस किया उसको शेयर करना चाहता है तो एनीवन कैन। जी सर, आवाज़ क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू। ऑल राइट, नेटवर्क इशू है रिदा फातिमा के पास। ओके रिदा, यू कैन राइट। ओके, यस सर, you told about paradigms methodologies, right? Yes, we discussed that there are three types. Yes, okay, anyone
Osama, can you please share your learnings from yesterday? Anyone who can open mic and share something. Assalamu alaikum, sir. I'm Alia Nasir. I missed yesterday's important session and I was told that I will get a recording. Yes, inshallah, you will get the recording. And we have uploaded it on YouTube since a lot of participants were facing issue to access that recording on Zoom Cloud. So we will be sharing, inshallah, the recording link soon after this session. Okay, sir, I would have loved to, but I missed out on the previous class. Okay, Osama missed out on the previous class too, owing to some work meeting that popped up. All right, Osama, it's okay. Anyone else who joined this class? I think Sarmad joined this class. Mohammad Asif was there also. Sadia Khan was there. Sarmad, did you join the class yesterday? Yes, sir, I joined, but I was in traveling from Islamabad to Bahawalpur. That's why I did not focus on the Okay, class. okay. All right, it's okay, it's okay. Anyone who joined yesterday's class and attended it with attention? जी सर, मैंने कल 11 AM वाली क्लास ज्वाइन की थी आलियान। All right, Alian, I remember. Yes, please. What did we discuss yesterday? Can you please give a quick recap? जी सर, हमने पैराडाइम्स को डिस्कस किया था। सबसे पहले उसमें आपने जो टाइप्स हैं उनकी ये बताई थी, अप्रोचेस, डिज़ाइंस और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड, इन चीज़ों के बारे में आपने कहा था कि हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपने हमें 3 डोमेन्स बताई थी, पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट एंड क्रिटिकल थ्योरी, या इसको प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं। पॉजिटिविस्ट में आपने कहा था कि इनकी जो फिलॉसफी होती है वो ये है कि वन रियलिटी फॉर ऑल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो हमारी रियलिटी है वो वही रियलिटी सबकी है, जो कि हमें दिखता और समझ आता है, तो वो बाकियों को भी वैसे ही समझ आना चाहिए। जबकि इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं कि डिफरेंट सोशल रियलिटीज़ होती हैं फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और वो उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड करती हैं, मीन्स के सब्जेक्टिव होती हैं। और जो पॉजिटिविस्ट हैं उनकी अप्रोच ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आपने क्रिटिकल थ्योरी का बताया था, प्रैग्मेटिज्म का। उसमें आपने कहा था कि जो सोशल रियलिटीज़ होती हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, सोशल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, और उसको फिर इंसान ह्यूमन लेके चलता है। इसके बाद आपने रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बताया था, और उसमें फिर आपने वो चीज़ें बताई थी, रिसर्च बाय अप्रोच एंड रिसर्च बाय डिज़ाइन। उसमें अप्रोच थी जो 3 थी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड। और उसके बाद आपने बताया था कि जो उसके डिज़ाइंस हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आ जाती हैं, हिस्टोरिकल आ जाती है, एथनोग्राफी आ जाती है, इस तरह का। जो क्वालिटेटिव हैं उनकी भी एक लिस्ट थी, क्वांटिटेटिव की भी लिस्ट थी। और बेसिकली क्वांटिटेटिव में हम मेजर्स करते हैं चीज़ों को और उनके रिजल्ट्स को जनरलाइज़ करते हैं, और जो क्वालिटेटिव है उसमें हम जो है फॉर एग्जांपल इंटरव्यू लेते हैं या केस स्टडी होती है, ये उसकी एग्जांपल है। और इसके जो इंटरप्रेट करते हैं हम इनके रिजल्ट्स को, या ट्रांसक्राइब कह सकते हैं, हम करते हैं। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपने करवाया था। उसके बाद आपने मज़ीद इनकी सब टाइप्स को आगे पढ़ाना था। Great. Thank you so much, Alian. It is really good. Yes, we discussed all these things. We started from paradigm. What is a paradigm? और उसके बाद फिर we discussed 3 different paradigms, और फिर we also discussed components of the paradigms, which are ontology, epistemology, and methodology. We discussed these 3 components in या details. And we also discussed 3 types of paradigms in details as well. और उसके बाद we highlighted the different approaches to methodology, और उसमें we discuss के we have this quantitative, qualitative and mixed methodologies or approaches, और उन approaches के under there are different designs, so we certainly discussed till there. So thank you so much, Alian, for your comprehensive recap of yesterday's class. So today we will be discussing these approaches in details, and with that we will start with quantitative research. So you might have seen that I have shared 2 PDFs in WhatsApp groups. So you can read that. I will be giving explaining first, and then we have a reading activity where you people will be reading certain chapters, and we will be discussing in there these chapters in this class. So I hope you enjoy this session as well as you did yesterday. Thank you so much. Let me share the screen, and we will start. I hope my screen is visible to you all, guys. Yes, it is visible. Great. Thank you, Sadia. All right. So yesterday we discussed till this slide, which was approaches and designs. So today we will be discussing these approaches in detail, and we will be having some reading activities for that as well. So we start with
quantitative research. What is quantitative research? Quantitative research involves a collection and analysis of numerical data to understand or explain a phenomena. किसी भी फिनोमेना को या किसी भी सब्जेक्ट को जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ करेंगे तो दिस विल बी आर क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें हम करते क्या हैं? इट एम्फसाइजेज ऑन ऑब्जेक्टिविटी एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे के जो न्यूमेरिकल डेटा होता है दैट इज वेरी ऑब्जेक्टिव एंड इट सजेस्ट दैट वन रियलिटी इज इक्वल फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। The reality will be same for any observer at any time or place in the world. Clear? और उसके बाद again there is measurability in quantitative research. Obviously when we are talking about some numbers means we are measuring something into numbers. For example किसी कितने students एजुकेशन की फील्ड को चूज करना चाहते हैं, ठीक है? सो दैट विल बी इन परसेंटेज प्रोबेबली, ठीक है, या इन नंबर्स प्रोबेबली। तो to measure that, ठीक है, अगर we have 60 students in the class and we are going to find out that how many of these 60 students actually want to join education as their undergraduate education or undergraduate degree. So uske liye we will be using this certain kind of numerics or numbers, so to measure the percentage of students joining education as their undergraduate degree. So this is again quantitative ki ye ek खूबी होती है कि we measure things in numbers. And also statistical analysis हम करते हैं to derive patterns and relationships. There are various tests in SPSS that we do to find out the relationship between different variables. आपने सुना होगा कि we have this correlation test, we have this ANOVA analysis of variance among variables, and we have regression tests and multiple others. So there are different tests or statistical analysis that we take to understand the relationship or the pattern between these variables that we study. So these are three basic components or components of quantitative research. ठीक है बाबा? And why do we use quantitative research? This is the purpose of quantitative research. कि इसमें हम quantify करते हैं variables को, number one, that we discussed earlier. उसके बाद हम टेस्ट करते हैं hypothesis को। hypothesis को टेस्ट करने के लिए, for example, मैं ये hypothesis बनाता हूँ कि 80% of students want to join education as a क्या कहते हैं इज देयर अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है? सो दिस इज माय हाइपोथेसिस। हाउ वुड आई नो दैट 80% ऑफ स्टूडेंट्स विल join education as undergraduate degree program? वो फिर मैं न्यूमेरिकल डेटा जब कलेक्ट करूंगा तो वहां से मुझे फिर पता चलेगा कि वाकई 80% स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है? तो फिर उसके बेसिस पे मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। उसके बाद सॉरी उसके बाद वी ऑल्सो डू क्वान्टिटेटिव रिसर्च जब हमारा पर्पज़ हो कि हम अपनी फाइंडिंग्स को जर्नलाइज करें या उसकी जर्नलाइजेबिलिटी हो, तो तब भी हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। क्योंकि जब क्वान्टिटेटिव रिसर्च की जो सबसे अच्छी बात ये है कि वो ऑब्जेक्टिव होती है, तो वन रियलिटी फॉर ऑल होती है ओबियसली। तो एक अगर 10 लोगों से इंटरव्यू लूँ सॉरी डेटा कलेक्ट किया जाए तो वो 100 लोगों पे एप्लीकेबल होता है और उसको हम जर्नलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर मैं 60 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में और मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ कि इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कौन सी फील्ड चूज करना चाहते हैं, या मेरी ये हाइपोथेसिस है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं 60 बच्चों से अपने जो रेस्पॉन्सेज हैं वो लूँ। मैं उसका एक सर्टेन पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स से ले सकता हूँ। जैसे 20% स्टूडेंट्स से अगर मैं 20% ऑफ 60 बिकम्स 12, तो 12 स्टूडेंट से अगर मैं डेटा लेता हूँ और उसमें उन 12 में से 80% स्टूडेंट्स अगर कहते हैं कि हम एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो इट मीन्स कि इट विल बी जनरलाइजेबल टू ऑल 60 स्टूडेंट्स के 60% स्टूडेंट्स सॉरी 60 स्टूडेंट्स में से 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो जाना चाहते हैं एजुकेशन में। सो दिस इज़ हाउ वी जनरलाइज। हमारे पास सर्टन पॉपुलेशन होती है और उसमें से हम सैंपल करते हैं कुछ लोग, कुछ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन, और फिर उस पर रिसर्च करते हैं। एंड व्हेन वी काइंड ऑफ कंप्लीट द रिसर्च और फिर उसकी जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम उनको जर्नलाइज करते हैं इन क्वांटिटेटिव रिसर्च कि वो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन थी 60 स्टूडेंट्स, हमने डेटा कलेक्ट किया 12 स्टूडेंट्स से, पर 12 स्टूडेंट्स के डेटा के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे या जर्नलाइज करेंगे कि जो भी रिजल्ट्स आए वो 60 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स थे।
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी जनरलाइज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऑल्सो इट एम्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड कॉजलिटी। जब भी हमें किसी दो चीज़ों के बारे में उनका रिलेशन मालूम करना हो या उनका कॉजल इफेक्ट मालूम करना हो, तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। ऑल्सो इट प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर प्रिडिक्शन एंड मेकिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। आपने देखा होगा कि जब स्टॉक एक्सचेंज है या जो हमारी इकोनॉमी है, उसके बारे में वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस कि अब आगे होने क्या वाला है। ठीक है, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। के क्वांटिटेटिव रिसर्च में ट्रेंड्स और पैटर्न्स लोग क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, तो अब क्योंकि ये पैटर्न है तो इसके बाद अब ये होगा। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा कि एक इकोनॉमी का बबल होता है और वो बबल बर्स्ट होता है आफ्टर 5 years। ठीक है, हर 5 साल के बाद इकोनॉमी, इन 5 सालों में इकोनॉमी जीरो से फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट हो रही है तो वो अपने पीक पे जाएगी, फिर वो उसी 5 सालों में जीरो पे आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये अब ये एक बार हमने पैटर्न चेक कर लिया, फिर ये रिपीट होता रहा है, तो हम किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं कि अब क्या होने जा रहा है इकोनॉमी के अंदर। सो दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च। हम प्रिडिक्शंस करते हैं कंसिडरिंग आर प्रीवियस पैटर्न्स। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी डू क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर, एंड दिस इज व्हाट क्वांटिटेटिव रिसर्च रेफर्स टू। So anybody has any confusions or need more explanation, I'm here. All right, we have some messages. Let me read out. All right, no PPTs were shared earlier, only video recording was there. All right, it is requested to kindly share PDF and of the session, please. Okay, notes and activities, PPTs, recordings. They said we will provide everything. Yes, we will provide everything. No worries, inshallah. How does this research apply for determining causality, sir? Acha, can you please explain this question a little further so that I can answer it properly and I can provide the answer that probably would be sufficient for you. So if you do that, it will be great. Thank you. श्योर श्योर। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में वी Mhm. ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड देन जनरलाइज अकॉर्डिंगली। मुझे उस Mhm. आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द लिंक बिटवीन पैटर्न डिटर्मिनेशन एंड एस्टैब्लिशिंग कॉज़ैलिटी। मुझे वो जरा लिंक इतना क्लियर नहीं हुआ। All इफ यू right, all right. हैव Okay, okay, okay. I now get it. You are confused between identifying patterns and the link between identifying patterns and causality, right? ये यस आपका सर, क्वेश्चन है। यस ओके, सर। इट इज नॉट नेसेसरली कि हम एक ही रिसर्च के अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और उनके कॉजेज को उनकी कॉजिलिटी मालूम करें। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेज वेयर वी कैन इनकॉर्पोरेट क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब हमारा पर्पस हो कि हम कोई आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कुछ पैटर्न्स, जैसे मैंने इकोनॉमी के एग्जांपल दी, तो वहां पे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। या फिर हमें कॉजिलिटी मालूम करनी हो, कॉज एंड इफेक्ट मालूम करना हो, तब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। जब हमें किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप मालूम करना हो, तब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। सो these cannot necessarily be part of single research. Rather, these are the purposes when we use quantitative research. Yes, Sadia. Yes. ओके। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जैसे हम रिलेशनशिप अगर पता करना चाह रहे हैं, तो इसमें एक ये बेहतरीन एक एग्जांपल है कि जैसे अगर आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उसका इफेक्ट Mhm. आपके रिजल्ट पे कैसे होगा, कि आपका ग्रेड कैसा आ रहा है। जितना ज्यादा Mhm. आप पढ़ेंगे, सो आई थिंक ये एक बेस्ट रिलेशनशिप है कि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। और स्टैट्स में तो वैसे भी नंबर्स जो हैं उसको अगर आप स्पीकेबल बनाते हैं तो वो एक बेहतरीन आर्ट है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया सादिया ने कि मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, कि मेरी हाइपोथेसिस है कि कोई जितना ज़्यादा स्टडी करेगा उतने ज़्यादा उसके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो मैं उसको स्टडी करने के लिए क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट से पूछूंगा कि आप कितने आवर्स के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स बताएंगे कि फॉर एग्जांपल मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, तो उस 3 घंटे या 5 घंटे वाले स्टूडेंट्स की, ये दो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं देखूंगा कि वेदर जो 3 घंटे पढ़ रहा है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, 5 घंटे जो पढ़ रहा है उसके रिजल्ट्स क्या हैं। फिर मैं देखूंगा अगर 5 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं कंपैरेटिव टू 3 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये एस्टेब्लिश करूंगा कि जो ज़्यादा पढ़ता है उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, या वो जो ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ता है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है अपनी एकेडमिक्स में। सो दिस इज हाउ वी कैन एस्टेब्लिश कॉजिलिटी। दिस इज व्हाट यू वर रेफरिंग टू, सादिया। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Okay, we have some more messages over here. Okay, yes, okay, clear. Ahmed, it is clear. Great, nice. All right, guys. We are having an activity, that is reading activity. I have shared two books. One I shared of Daniel Muiz,
आपको उसमें जाना है, ओपन करनी है वो पीडीएफ, और उसके अंदर चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 की हेडिंग 1.1, 1.3 एंड 1.5 आपने पढ़नी है। उसके अंदर वी हैव डिफरेंट फुटनोट्स, और उसमें आपने सिर्फ 2 फुटनोट्स पढ़ने हैं, विच इज वन इज व्हाट इज हाइपोथेसिस, और दूसरा है सम कॉमन मिसकंसेप्शंस। सो आपके पास 14 मिनट्स हैं। वी विल स्टार्ट द डिस्कशन एट 4 PM डॉट। अभी 46 हुए हैं, तो गो रीड एंड शेयर योर रिफ्लेक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस। सर एक बार दोबारा बता दें क्या क्या पढ़ना है? ओके, मैंने 2 पीडीएफ शेयर किए हैं आपके ग्रुप में। उसमें पहला जो पीडीएफ जो मैंने पहले शेयर किया था, दैट इज ऑफ डेनियल मोइस। उसमें वो पीडीएफ ओपन करेंगे, उसका चैप्टर 1 है क्वांटिटेटिव रिसर्च। उस क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपकी हेडिंग है 1.1। उस हेडिंग का नाम है व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये हेडिंग आप ओपन करेंगे, पूरी पढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है। फिर आपके पास है हेडिंग 1.3, वो पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद आपके पास है नीचे व्हाट इज हाइपोथेसिस, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद सम मिसकंसेप्शंस, वो आप पढ़ेंगे। दीज मिसकंसेप्शंस आर अबाउट आवर रिसर्च, के रिसर्च के बारे में हमारे पास कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं नॉर्मली लोगों के पास, वो क्या हैं। और फिर उसकी समरी है पूरे चैप्टर की 1.5, वो आपने पढ़नी है। इज इट क्लियर? यस। गुड, यस सर। थैंक यू। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस सो फार, यू कैन आस्क। सिर्फ अभी ये पढ़ना है ना चैप्टर 1? या सिर्फ अभी चैप्टर 1 पढ़ना है। वी हैव टिल, चलो आपको, वी हैव टिल 4:05, ठीक है। 4:05 तक आप इसको रीड करें एंड वी विल डिस्कस दैट।
All right, girls and guys, I think it's time for discussion. I hope you all have finished your reading, and not if not all, but major part of your reading you have done. So I would like some volunteers who share their reflection of the reading, what they understand of what they read. So anyone who would like to share their thoughts? Shundas, can you please share your thoughts on reading? Or anyone else? Alia, would you like to? The given book is an excellent definition on the quantitative study, and उसकी explanation भी बहुत अच्छी बताई गई है कि explaining phenomena, कोई भी हम phenomena यूज करते हैं, not necessary वो quantitative nature का हो, लेकिन we make it quantifiable. जिस तरह attitude और beliefs की उन्होंने बात की थी नीचे के attitude and beliefs are subjective feelings or perceptions, but we make it in a Likert scale जिसमें हम 1 to 5 और स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री इस तरह से करके हम क्वांटिफाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन जो है ना बनाया गया है। और दूसरा इसमें ये भी क्लियर किया गया है कि स्टेटिस्टिक्स या मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं उसमें नॉट नेसेसरी के इंडिविजुअल्स का मैथ्स की सब्जेक्ट एक्सपर्टी होनी चाहिए, तो वही क्वांटिटेटिव मेथड्स कर सकता है। सब्जेक्ट एक्सपर्टी लाजमी नहीं है, लेकिन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर ये भी बात की गई थी कि हम जनरलाइज रिजल्ट तब करेंगे या हम बोलेंगे कि हमने फैक्ट्स तब कलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन नॉट के वो मैथमेटिकली प्रूवन हुआ है, लेकिन हमारे मेथड्स में हमारा सैंपल इसमें नहीं मेंशन है, लेकिन मैंने जो परसीव किया कि सैंपल है, मेथड है, डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर है, ये सारे अगर हमारे करेक्ट होंगे तो हम बोलेंगे कि वी हैव आइडेंटिफाइड द ट्रूथ प्रॉपर्ली। All right, thank you so much, Alia. Yes, you are right. Like we in quantitative research, we obviously have to have kind of everything intact with numerical data. Like we. All right. Sadia Khan has raised their hand. Yes, Sadia, please share your thoughts, and then I will be sharing my reflection. Sadia, can you hear me? यस सर। Yes, please. क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में मैं जस्ट ये ऐड करना चाहूँगी कि अभी तक जो सबसे एक फेमस क्वांटिटेटिव रिसर्च हुई है वो अमेरिका के एक शहर फ्लेमिंगम में हुई थी 1948 में, और इसमें आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों का जो है उनको स्टडी किया गया था कि आया उनकी जो हार्ट डिजीज़ हैं वो किस चीज़ से लिंक्ड हैं, क्या उनके ब्लड प्रेशर की वजह से है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वजह से है, या बॉडी वेट की वजह से, या स्मोकिंग, या उनकी एक्सरसाइज हैबिट की वजह से। सो जब उनको स्टडी किया गया तो उससे पता चला कि उन जो हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो या ब्लड प्रेशर जो है यानी हाई ब्लड प्रेशर यही मेन रीज़न है हार्ट डिजीज़ का। तो आई थिंक क्वांटिटेटिव रिसर्च जो थी वो ये एक बड़ी स्टडी उसमें यही थी कि इस चीज़ को स्टडी किया गया कि कैसे हार्ट डिजीज़ की वजूहात जो है वो कौन-सी हैं। तो मैंने जस्ट ये ऐड करना है। सर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो थियरीज बताई गई हैं, Yes, Alia, please continue. थियरीज में भी दो तरह की कंट्राडिक्शन है कि फर्स्ट जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है जिसमें रियलिज्म, सब्जेक्टिविज्म और पैराडाइम वॉर्स हैं। रियलिज्म ये है कि रियलिटी को हम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली ऑल द टाइम जिस तरह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो रियलिटी ट्रू आपको पिक्चर दे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बायसेस और हो सकते हैं, सब्जेक्ट बायस हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट बायस हो सकता है, और सब्जेक्टिव फीलिंग्स जो है वो ट्रू ना हो, मतलब जो एक्चुअल हो वो नहीं बता रहा हो, सब्जेक्ट अपनी परसेप्शंस ट्रू ना बता रहा हो, या रिकॉल बायस हो सकता है। तो उसकी वजह से सब्जेक्टिविज्म और रियलिज्म नॉट नेसेसरी कि हम ऑलवेज इसको अचीव कर सकें या ऑब्जर्व कर सकें। तो आई डोंट नो, यही मैंने अंडरस्टैंड किया है उसमें। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट में जो है वो दैट इज मोर रेलिवेंट कि हम post positive I agree with the post positivist approach, जिसमें फोकस किया गया है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंस के साथ, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये ट्रूथ है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में स्टेटिस्टिकली मेथड से हम ये एसेस करते होंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये जो भी हम यूज करते हैं उससे।
यस एग्जैक्टली, दिस इज रियली रियली नाइस। देखिए, जैसे हमने पहले कल पैराडाइम्स को डिस्कस किया था ना, तो पॉजिटिविज्म का ये बिलीव था कि दैट रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड वी कैन मेजर इट इन न्यूमेरिकल डेटा. Also, we only can study everything through numerical data, and we can then generalize that findings over majority of the population or overall population, right? तो इसमें जो प्रॉब्लम पोस्ट पॉजिटिविस्ट ने जो पोजीशन उन्होंने ली, पोस्ट पॉजिटिविस्ट ने, उन्होंने ये कहा कि ऑल राइट, वी कैन डिस्कस, वी कैन यू नो analyze the absolute truth, but truth is not absolute, rather it is relevant, relative. रिलेटिव ट्रूथ है, जैसे आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का जो थ्योरी दी थी ना, उससे ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है पोस्ट पॉजिटिविज्म, कि रियलिटी जो है वो रिलेटिव है. देयर इज नो एब्सोल्यूट रियलिटी, बिकॉज एवरीवन सीज द सम पर्टिकुलर, कि ही चीज को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो हम हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है 6 एंड 9 वाली. जो 6 के नीचे वाली साइड खड़ा होगा वो समझेगा कि ये 6 है, बट जो 6 के ऊपर वाली साइड पे खड़ा होगा वो समझेगा कि ये 9 है. सो इट इज, द रियलिटी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन the observer, how we observe it, right? So this is the position of interpretivists, that they think that reality is subjective and we do not have any absolute reality. On the other hand, positivists believe that reality is absolute, and we can study that there is a reality in there, and we just need to explore it and discover it rather than producing it, or it is not subjective, right? So this is the main argument of positivism, and that is why they suggest that we can study everything with the help of numerical data. And again, there are different criticism on quantitative research as well, that जैसे आपने बताया कि जो सब्जेक्ट है, जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ही माइट बी बाइज्ड एट सम पॉइंट, वो अपनी एक्चुअल फीलिंग्स के बारे में नहीं बता रहा, फॉर एग्जांपल, या वो उसको उसको जो चीज़ उसने एक्सपीरियंस की है उसको रिकॉल प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा, तो ही में प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन. And if that wrong information is kind of but transferred into numerical data, or transcribed into numerical data, so it will be difficult for us to know the truth directly. So that's why they argue that ke hum qualitative research pe focus kare zyada, because that only that way we can understand the phenomena comprehensively. Clear? So, but that is the criticism on this quantitative research, right? So the main purpose of knowing, having this reading was to make you familiarize with why do we choose research, quantitative research. हम quantitative research क्यों यूज करते हैं? एंड इफ यू हैव रेड इट, तो देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनको आंसर करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं. एनीवन कैन गिव मी दीज 4 क्वेश्चंस, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मेंशन थे व्हेन वी यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च. उसके अंदर देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस जो मेंशन्ड है. तो कौन बताएगा वो? असरा, कैन you please share? Okay, meanwhile someone understands this or may get a courage to speak up, so let me read out Sundar's Akhlaq's written response. Sir, basically what I perceive from reading is that qualitative research focuses on collecting and analyzing data numerically with the help of statistical techniques. Yes, exactly. This is what quantitative research do. Furthermore, to apply statistical methods, we don't need a strong background in mathematics. Yes, we not necessarily need a background in mathematics, but we should at least know how to apply the appropriate methods based on our research data. Yes, exactly. This is really, really, really important to apply appropriate techniques to the data analysis. हमें ये पता होना चाहिए कि हम कब कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे फॉर डेटा एनालिसिस, सो दैट वी यील्ड पॉजिटिव एंड रेलेवेंट एक्यूरेट रिजल्ट्स. अदरवाइज हमारे रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे जो हम हमारी रिसर्च जिनके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं. सो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos and it will create an not reliable results, right? So it is really important to adopt appropriate method and appropriate analysis techniques and tests. Okay, also we can derive multiple hypotheses from our research question and then either accept or reject them depending on whether there is a relationship between the variables or not. Exactly. We can have a hypothesis, and we test hypothesis in quantitative research on the basis of different you know on the basis of data that we gather, and we run tests in SPSS. आपको SPSS का पता होगा सबको, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, इसको हम कहते हैं SPSS. ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वी डू क्या कहते हैं डिफरेंट एनालिसिस. ठीक है, तो जब हम सही अपनी एनालिसिस के लिए या अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हम प्रॉपर appropriate techniques इस्तेमाल करेंगे, तब ही only then we will be able to yield
the accurate results. Otherwise हमारी जो results हैं वो accurate नहीं होंगे. So you are very right. We need obviously appropriate methods. Okay. उसके बाद Aksa Abdo says hypothesis is a guess or possible answer to question that we tested through research. Yes, exactly. Research hypothesis हम क्या करते हैं? Hypothesis is something that we just give me a minute. All right. Aksa Abdo says hypothesis is a guess or possible answer to a question that we tested through research. हम कोई भी चीज़ के बारे में hypothesis बनाते हैं and then we test that hypothesis against our data. हम data जो भी collect करते हैं उस data को use करके there are different tests to analyze hypothesis के को टेस्ट करने के लिए हमारे पास अनोवा टेस्ट होता है जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं. हमारे पास कोरिलेशनल टेस्ट होता है, उसमें हम टेस्ट करते हैं. उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं रिग्रेशन टेस्ट होते हैं डिफरेंट, वो हम यूज़ करते हैं टू अप्रूव और reject our hypothesis. And hypothesis is obviously a assumption of a researcher that a researcher develops at best, before research कि मैं ये रिसर्च करने लगा हूँ और मुझे लगता है कि ये जो ये रिजल्ट आएंगे. अब वो रिजल्ट अगर आते हैं तो वी एक्सेप्ट दैट हाइपोथेसिस, अगर वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो वी रिजेक्ट दैट हाइपोथेसिस. एंड हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा से कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट करके रिजल्ट आते हैं उसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं. सो दिस इज हाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग वर्क. हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ ऑफन. Yes, exactly. We study these things in quantitative. Okay, Aksa says we use quantitative research to answer questions that need numbers. Yes, exactly. To see if numbers are increasing or decreasing, we need quantitative research method because number clearly show trends. Exactly. वहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैटर्न्स और ट्रेंड्स हम कैसे फॉलो करते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो हियर यू गेट द आंसर कि जब भी हम किसी भी पैटर्न को या ट्रेंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वी लुक अप टू द नंबर्स, वी लुक अप टू द फिगर्स कि नंबर्स बढ़ रहे हैं या नंबर्स घट रहे हैं. जैसे डॉलर की प्राइस है या गोल्ड की प्राइस है, तो हम देखते हैं कि पिछले 5 महीने में गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ रही थी तो ये ठीक है, तो अब हम ये हाईएस्ट पॉइंट है हम यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि अब ड्रॉप होने लगेगी. ठीक है, हम ट्रेंड्स देखते हैं कभी भी. आप ये जो क्रिप्टो मार्केटिंग है, ठीक है, क्रिप्टो की जो मार्केट है उसके अंदर भी पीपल बाय और सेल ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रेंड्स के क्या चीज़ बढ़ रही थी, किसके नंबर बढ़ रहे थे, बायर किस चीज़ के बढ़ रहे हैं. जिसके बायर बढ़ रहे हैं, जिसकी डिमांड बढ़ रही है, उस चीज़ को अभी हम ले लेंगे तो थोड़ी कुछ टाइम के बाद हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं. अगर जिसकी डिमांड घट रही होती है तो उसको हम सेल आउट कर देते हैं ताकि इससे पहले कि मजीद डिमांड कम हो और इसकी प्राइस लो हो जाए तो हम उसको बेच देते हैं इन क्रिप्टो. सो दिस इज हाउ these numbers show trends. On the basis of these trends we predict the future, we predict the kind of future reality कि आगे reality में क्या होगा. ठीक है, तो this is the patterns and trends finding. उसके बाद she says कि quantitative research helps us to explain causes and relationship between variables. Yes, we discussed this earlier. जब हम purposes डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटेटिव रिसर्च के, तो उसके अंदर भी डिस्कस के कॉजिलिटी हम शो करते हैं. जब हमें शो करनी होती है कॉजिलिटी अमंग टू वेरिएबल्स तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं. या जब हमें कोई रिलेशनशिप इनका टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके फिर हम ये क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं. वी कैन टेस्ट theories using quantitative research. Yes, we discussed that theories are the hypothesis at first and then when they are proved then they become theories. So obviously we do that. Quantitative method let us check if our theory is correct using the data analysis. Exactly, this is what I just explained a couple of minutes ago कि किसी भी theory को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए हम जो एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, उसकी बेसिस पे हम वो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं. Musabbiha says hypothesis is a type of statement or educated a possible explanation of the relationship between variables. Yes, it is this. In medical research we use 1% significance to be extra sure because lives are at stake. In general studies 5% is fine, a small chance of error is acceptable. Yes, exactly, Sadia, you're very right. In different fields, disciplines or fields of study, the possibility of falsifiability proportion is different. For example, in medical research it is 1% as you say. तो वो इसलिए कि
1% इसमें मिस्टेक हो सकती है, बट क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज नथिंग 100% एक्यूरेट, तो उसमें फाल्सिफाइबिलिटी जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, राइट, और उतनी वो एप्लीकेबल होगी या उतनी उसको हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं, विच यू आर रियली राइट। बाकी सोशल साइंसेज में वी हैव 5% आप बता रही हैं, बट इट इज़ 2.5% जो हम फाल्सिफाइबिलिटी को रखते हैं, कि 2.5% जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑफ हो सकते हैं या अनट्रू हो सकते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपनी ट्रू रियलिटी नहीं बताते, ठीक है, तो उनकी हम जो प्रोपोर्शन है वो 2.5% होती है। सो दिस इज व्हाट all quantitative research is about. Anybody has any questions, you can ask. I hope with this discussion about all 2-3 questions that were asked earlier जी वो आंसर हो चुके हैं। रिपीट सेक्शन, अच्छा डिजाइन वाला क्वेश्चन रह गया है, बाकी सारे हो गए। आइडेंटिफाई पैटर्न कैसे करते हैं और कॉजलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस दीज 2 क्वेश्चंस। बस ये एक क्वेश्चन रह गया है, दैट इज ऑफ व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, व्हाट डू वी मीन बाय रिसर्च डिजाइन, ये क्वेश्चन रह गया। कहाँ पर ऑल है? राइट जी, इसमें कहाँ पर क्वेश्चन है ये? ये प्रीवियस डे की स्लाइड से क्वेश्चन है, ओके। या ये प्रीवियस डे की स्लाइड से क्वेश्चन। All right, before we move forward, let me just give a quick recap of yesterday's class के research approach और research design क्या होता है। Research design is a detailed plan or blueprint that outlines the specific procedures and methods used to address the research question or objectives. It provides a structure of collecting, analyzing, and interpreting data. For example, research design includes experimental, non-experimental, correlation, case study, survey design, and longitudinal designs. अब इसके अंदर these are the types of designs. Research design is actually the structure that we build before before collecting data. तो हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम डेटा किस टाइप का यूज करेंगे, एज वी डिस्कस चलिए हमारी जो ऑन्टोलॉजी थी, कि पहले तो हमारी रियलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑन्टोलॉजी। उसके बाद हम बेस्ड ऑन आवर रियलिटी, आवर बिलीफ अबाउट रियलिटी, वी चूज कि डेटा कौन सा चाहिए इस पर्टिकुलर रियलिटी के लिए। तो फॉर ऑब्जेक्टिव रियलिटी इट इज न्यूमेरिकल, फॉर सब्जेक्टिव इट इज वर्बल। तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे आते हैं कि हम मेथडोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, एंड वी डिस्कस दैट देयर आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज इन मेथडोलॉजी के 2 मेजर टाइप्स हैं, सॉरी 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं या सब टाइप्स हैं, जिसके अंदर वी हैव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड। ठीक हो गया। अब ये तीनों अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, कि रिसर्च मेथडोलॉजी को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, हाउ वी गो अबाउट इट, हम वेदर वी विल बी गोइंग अबाउट इट क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली, और वी विल बी कंबाइनिंग बोथ। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच, एंड देन इन ईच अप्रोच देयर आर सेट ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स अंडर ईच अप्रोच। हर अप्रोच की अपनी अपनी कुछ डिजाइंस हैं जिनको फॉलो करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो research design is basically the structure that we use to collect, analyze, and interpret data. And on the basis of this design, we actually can say that if we use appropriate design, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी रिसर्च सही है, या जो डिजाइन का जो स्टेक है या इम्पोर्टेंस है इन आवर in our research, it is very very important, because on the basis this appropriate research design provides credibility to our research, कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन से अलाइन कर रही है अगर हमारी रिसर्च डिजाइन, ओनली देन इट विल यील्ड एक्यूरेट रिजल्ट्स। अगर हमारी रिसर्च क्वेश्चंस के साथ डिजाइन अलाइन नहीं कर रही, तो फिर ये एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है वो यील्ड नहीं कर सकेगी। सो दिस इज हाउ important research design is, and research design is again the structure, complete structure, systematic structure। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि डेटा टाइप कौन सा होगा, डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, सैंपल साइज क्या होगा, सैम्पलिंग कैसे करेंगे, उसके अंदर भी डिस्कस के हमारा जो डेटा एनालिसिस का टूल, डेटा कलेक्शन का टूल है वो क्या होगा, फिर डेटा कलेक्शन किस तरीके से होगी, ठीक है, और फिर डेटा कलेक्ट हो गया तो अब इस डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वी हैव के हम इस डेटा को अब एनालाइज तो कर लिया, अब इंटरप्रेट कैसे करें, तो ये सारी चीजें हम मेथडोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं रिसर्च डिजाइन के अंदर। ठीक हो गया जी। सो इफ इट इज क्लियर तो गिव मी हेड्स अप, अगर नहीं है क्लियर तो आई कैन एक्सप्लेन फर्दर। यस आलिया, यस। सर मुझे ये मालूम करना है कि जिस तरह रिसर्च अप्रोच में हमने ये बोला कि हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है और क्वांटिफाई भी करनी है, तो इन डेप्थ के लिए हम क्वालिटेटिव अप्रोच मिक्स मेथड करेंगे, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होगी। अब इसमें जब हम रिसर्च डिजाइन में हम जाएंगे तो क्वालिटेटिव में फिर हम फेस वाइज करेंगे इसको, सी जब मतलब हम मेथोडोलॉजी में हम जब इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे तो फेजेस में होगा ना फिर ये तो। यस सी, जब भी हम किसी भी रिसर्च के बारे में रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं,
ठीक है। तो उस वक्त हम वहाँ पे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं, फिर उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम बताते हैं कि हमारी इस मेथोडोलॉजी में रिसर्च अप्रोच ये थी, यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड। ठीक है। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर रिसर्च अप्रोच के अंदर वी हैव डिफरेंट रिसर्च डिजाइंस। ठीक है। वो प्लान ऑलरेडी बने हुए हैं, वो ये है हमारे पास। ठीक है। कि क्वांटिटेटिव होगी तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या कोरिलेशन मालूम कर रहे हैं, या हम कोई सर्वे कर रहे हैं। ये जो रिसर्च है वो लॉन्गिट्यूडनल है या क्रॉस सेक्शनल है। तो दिस इज हाउ longitudinal is single time, cross sectional is at at multiple times हम देखते रहते हैं किसी भी रिसर्च को। सी ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन के फॉर एग्जांपल मेथोडोलॉजी में मैंने अप्रोच यूज की क्वांटिटेटिव, और डिजाइन मैंने यूज की एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल के अंडर एज वी विल स्टडी टुमारो, इसके अंदर डिजाइन को हम एक्सप्लिसिटली एक एक डिजाइन को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो उसमें वी विल सी कि हाउ वी कलेक्ट डेटा अंडर ईच डिजाइन। हर डिजाइन में डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है, डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स क्या हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रोसीजर्स क्या हैं। हर डिजाइन के अपने अपने मिलते जुलते हैं, समटाइम्स ओवरलैप करते हैं, कुछ में कुछ होंगे, कुछ में कुछ नहीं होंगे, कुछ में सारे ही होंगे। ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक है, इन अमंग दीज designs, but obviously we have different design data collection, analysis and interpreting tools in these designs. So designs differ ही इस basis पे करती हैं कि इनके अंदर data collection और data analysis के different तरीके हैं, इसलिए ये different designs हैं, otherwise same design होना चाहिए। Clear? Yes, so this is how we go about it. All right, so no worries, I'm here to help you, and I really appreciate when you ask questions, so it helps me clear more, cover it in different perspectives, so that it may be understandable for other people as well. Like sometimes people are very shy to ask questions, and they think कि यार चलो ठीक है, जो आया समझ आया, जो नहीं आया वो भी ठीक है। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन वो नहीं करते शाय होने की वजह से, बट उनको समझ नहीं आया होता। तो जब कोई क्वेश्चन करता है तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने से ये होता है कि आपका तो फायदा हो ही रहा है, बट जिसने क्वेश्चन नहीं किया शायद इसकी वजह से उसका भी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। So it is really, yeah, thank you. I really like the participation. Thank you. All right, now we move to quantitative research. Quantitative research, sorry, rather qualitative research. Qualitative research is focused on focused and interpretive approach that systematically explores complex phenomena. अब simple phenomena तो हम quantitative research से देख रहे थे कि जैसे कितने परसेंट, कितने, how many, how much and to what extent, ये तो हम कर रहे थे। ठीक है। उसके अंदर quantitative के अंदर, बट कोई एक चीज, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट कर रहा है, ये हमने डिसाइड कर लिया सिंपली यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड। अब वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्यों इम्पैक्ट कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू समझते हैं। ठीक है। इन डेप्थ उसको समझने के लिए। क्लियर? और इसके अंदर नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इसमें हम वर्बल डेटा यूज करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है एंड इमरजेंट होता है, यानी इसमें हम जैसे क्वांटिटेटिव में फिक्स्ड रेस्पॉन्सेज देने होते हैं। ठीक है। तो क्वालिटेटिव में पार्टिसिपेंट्स फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्सेज देते हैं। ठीक है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होगा। क्लियर? हम यूज क्यों करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, इसके डिफरेंट जो रीजंस हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। जैसे डीप टू अंडरस्टैंड डीपली, ठीक है, किसी भी चीज़ को या ह्यूमन बिहेवियर को या सोशल फिनोमेना को जब हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्लाई करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि 80% स्टूडेंट्स वांट टू गो टू एजुकेशन। अब 80% जा तो रहे हैं, ये हमें पता चल गया। वो 80% क्यों जा रहे हैं वो हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वालिटेटिव यूज करेंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें डिफरेंट उनके क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव होंगे, हर किसी का रीजन प्रोबेबली डिफरेंट होगा। ठीक है। हर किसी का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा। ठीक है। हर किसी जो भी डिसाइड वो बच्चे कर रहे हैं ऑन द बेसिस, उनकी बेसिस डिफरेंट होगी। ठीक है। तो इसके लिए वी हैव एन अदर रीडिंग फ्रॉम एन अदर बुक, दैट इज फ्रॉम डोना मार्टिन्स चैप्टर 8। ये पेज नंबर 225 पे है। बुक की 225 है और पीडीएफ की 251 है, आई गेस, बुक नंबर, पेज नंबर। तो आप डोना मार्टिन की बुक खोलेंगे, उसमें भी पेज नंबर 225 ऑफ द बुक एंड 251 ऑफ द पीडीएफ ओपन करेंगे तो उस पर आपको मिलेगा क्वालिटेटिव मेथड, बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, एंड उसमें देयर इज अ बॉक्स मेंशनड 8.1। उनको आप स्टडी करेंगे तो यू विल हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है और हम चूज क्यों करते हैं, सिलेक्ट क्यों करते हैं क्वालिटेटिव मेथड। जैसे हमने क्वांटिटेटिव मेथड के लिए डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है और हम क्यों चूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और हम क्यों, किन बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करते हैं कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। ठीक है। तो वी हैव अगेन 10 minutes and after 10 minutes we will be discussing this. ठीक है जी। सर ये कौन से पेज करने, जी कौन सा कहाँ से स्टडी करना है पेज?
ये पेज नंबर 225 डोना मार्टिन्स की बुक है, मैं सही है। मेंशन कर देता हूँ ग्रुप में। नहीं वो तो खोल लिया है जो शेयर हुआ है ना जी जी पेज जी जी। नंबर। आपके पास 2 बुक्स थी ना जो हमने शेयर की है। तो एक बुक है एक बुक है डेनियल मुइस की जो फर्स्ट थी। उसके बाद मैंने पीपीटी शेयर की थी, और पीपीटी के बाद मैंने डोना मार्टिन्स की शेयर की थी। तो पीपीटी मैंने मेल ग्रुप में आई थिंक नहीं की थी, तो आप बता दें। Yes, exactly, Mursaleen, you are right. This book we have to open. इस बुक के अंदर we have to go to chapter 8. This is on page number 225 of the book and 251 of the PDF. पेज नंबर 20 से करना है ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम। No, page number 225. 220।
All right, guys. I hope you all are done with the reading since we are getting late. So let's discuss what do you understand of qualitative research, and we will be discussing it. So who would come first and share their perspective or the reflection on qualitative research? कौन बताएगा सबसे पहले बाबा? I can. Yes, Yes. yes, Alia, please. Thank you. क्वालिटेटिव में जो फोकस है वो इन डेप्थ है, न्यू फिनोमिना है जो पहले स्टडी नहीं किया गया है, और पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें फिर मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यूज हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ट्रांसफॉर्मेटिव व्यू है, और प्रेगमेटिक अप्रोच है, व्यूज हैं। कंस्ट्रक्टिव व्यूज में है कि वी कंस्ट्रक्ट द फिनोमिना जो एब्सोल्यूट नॉट रियली रियलिटी को एब्सोल्यूट करता है, लेकिन सोशली कंस्ट्रक्टेड हो, सोसाइटी से उसका ताल्लुक हो, तो सोसाइटी में हर इंडिविजुअल के परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं, तो वी आइडेंटिफाई द परसेप्शंस जब तक हमारी वो सेचुरेशन पर आ जाता है कि एवरीवन शेयर्स द सेम पर्सपेक्टिव और न्यू कोई आइडिया नहीं जनरेट होता है। और लेकिन इसमें जो है वो लिंकन और गोपा ने बोला है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज जो हैं उसमें दोनों अप्रोचेस यूज हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ट्रांसफॉर्मेटिव में ये था कि कोई स्पेशल डिसेबिलिटीज हैं या कोई स्पेशल ग्रुप्स हैं, उसको फोकस करके ज़्यादातर उन्होंने स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स को और स्पेशल माइनॉरिटी ग्रुप्स को फोकस किया है कि वो हाउ दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स एंड हाउ दे मेक एंड अडॉप्ट द थिंग्स, ताकि उस ग्रुप के हिसाब से इंडिविजुअली प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएं बेस्ड ऑन देयर फीलिंग्स, परसेप्शंस एंड नीड्स। और इसमें फिर फेमिनिस्टिक अप्रोच भी था, जिसमें उन्होंने मतलब फोकस किया। फेमिनिस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट को वो बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि वो दे ओनली फोकस ऑन क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ स्टडी। देन प्रैग्मेटिक अप्रोच है जिसमें अगर हम कोई भी नया प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई नई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं या कोई प्रोसेस के थ्रू जाना चाह रहे हैं या कुछ चीज़ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, और उन पर्सपेक्टिव्स को लेकर हम नई चीज़ डेवलप करते हैं, और उस डेवलप चीज़ को फिर हम क्वांटिटेटिव में हम फर्दर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। All right, thank you so much, Alia. It's really, really nice that you shared a detailed answer. Yes, it is certainly that we most of research paradigms actually like जैसे मैंने आपने कहा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट या पोस्ट पॉजिटिविस्ट, उसके अलावा फेमिनिस्ट, these are actually the paradigms that were developed after the interpretivism, and these paradigms actually support qualitative research because they believe in social change, and जो pragmatism है that particularly focuses on social change, or where they consider the all the different ethnic and racial and even minorities into consideration. And when people with disabilities or from minority groups, they think that, like, pragmatists think that these people also have certain beliefs and approaches, and they have rights to share their feelings and emotions. And if we want to make any arguments or perspective about them, it is better that we first understand them deeply by using qualitative research, so that we can better understand their needs and understandings. This also goes with the students with disabilities as well, कि जब तक हम students की उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक जो है हम उनके लिए कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे. एंड if we do not take any right decisions, so Zaire, it would be unjust with them. So this is why these people actually propagate qualitative research. That qualitative research actually explains things in details. So yes, you are right, and this is what we actually use this kind of qualitative research for. और जहाँ तक बात है कि हम क्यों करते हैं, तो जाहिर है when we are trying to understand something in details or in depth, तो हम qualitative research use करते हैं. And there are certain scenarios. Let me just give them a look and I'll explain कि क्या क्या scenarios हैं, जिन scenarios के अंदर we actually use qualitative research. Just give me a second. It is 251. Okay. 251. Yes. Okay, practical reasons
pragmatism, nature of the research question itself can lead a researcher to choose qualitative research method, identifying following 4 type of research questions for which qualitative method would be appropriate. अब 4 ये जो 5 questions हैं, जैसे हमारे पास quantitative के लिए there were 4 questions for which we were actually supposed to if we want to answer them, so we were supposed to use quantitative research. Here we have these 5 types of research questions. इनको आंसर करने के लिए हम qualitative research यूज करते हैं. For example, the one is the focus of the research is on the process, implementation or the development of a program. Since this book is about research in education, तो education program की बात हो रही है कि जब भी हम किसी भी education program के बारे में, उसके process के बारे में study करना चाह रहे हैं, या उसकी implementation के बारे में हम study करना चाह रहे हैं, या हम उसकी development के बारे में study करना चाह रहे हैं, तो we use qualitative research. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस क्या है, क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं, उसको स्टडी करना है तो हम क्वालिटेटिव करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रही है, नहीं हो रही है, जैसे हमने जैसे क्लास ऑब्जर्वेशंस होती है, तो एक पॉलिसी हमने बनाई, एक करिकुलम हमने बनाया, उस करिकुलम को देखने के लिए कि वेदर दिस करिकुलम इज़ अप्रोप्रिएटली this curriculum is being appropriately Let's like sequence. या फॉलोड और नॉट, तो उसको देखने के लिए हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, देखते हैं कि टीचर वही चीज़ पढ़ा रहा है या कुछ और पढ़ा रहा है एंड ऑल दैट. ठीक है, तो सिमिलरली डेवलपमेंट अगर हम करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोग्राम की, तो देन वी स्टडी के फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें चाहिए, किसी भी स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को लाइक क्या नीड्स थी, फिर उनको ऑलरेडी क्या आता है और क्या उनको आना चाहिए फॉर सर्टेन पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो उस बेसिस पे फिर हम ऑब्वियसली वी गो फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च. This is clear so far. Then there comes a program emphasis on individualized outcomes. अगर हम जैसे different कोई भी program education काम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर when we try to develop or produce individualized outcomes, यानी कि हम चाहें कि हमारे सारे students जो हैं वो equally perform करें, तो ज़ाहिर है considering the different needs of different students and different learning styles of different students, we will go for qualitative research to understand and analyze their different learning styles, again their learning needs and their learning patterns, and only we can do that only with the help of qualitative research, by doing in-depth interviews with them, and by doing kind of observations and learning studying their टेस्ट परफॉर्मेंसेस. ठीक है, तो उनकी बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें इनको क्या चीज़ किस तरीके से प्रोग्राम को आगे लेके चलना है, सो दैट वी कैन हैव द इंडिविजुअलाइज्ड आउटकम्स, यानी हर बच्चा जो है जो कि उस प्रोग्राम का पार्ट है वो इक्वली या अच्छे तरीके से परफॉर्म करे. ठीक है जी. इसके बाद है वी हैव डिटेल्ड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इज नीडेड अबाउट सर्टेन क्लाइंट और द प्रोग्राम. किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी क्लाइंट के बारे में, किसी भी प्रोग्राम के बारे में, व्हेन वी आर trying to understand in detail, we always use qualitative research. And fourth is the focus is on delivery diversity among idiosyncrasies of and unique qualities exhibited by individuals. As we discussed earlier, जैसे आलिया ने बताया कि we need to include various diverse people, यानी people from minority groups, people from females, people with disabilities and other kind of diversities that we have. So उनको सब जब we want to include everybody, so that's when we use qualitative research, ताकि हम सबको, क्योंकि हर किसी की जो needs हैं या जो qualities हैं या जो experiences हैं, they are unique, और जब वो unique चीज़ों को हम explain करते हैं तो हम फिर qualitative research के through करते हैं. And fifth is the intent to understand the program theory. That is the staff members, for example, beliefs is to the nature of the problem that they are addressing and how their actions will lead to desired outcomes. For example, अगर हम किसी भी theory को understand करना चाह रहे हैं, जैसे कि जो staff members हैं उनका जो belief है about the nature of the problem they are addressing, यानी they are working on, तो उसको address करने के लिए जो भी actions वो करेंगे वो उनकी for example desired outcomes पे उन पे depend करता है कि जो actions वो ले रहे हैं. ठीक है, जैसे for example एक एक स्कूल है, उसके अंदर टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स आर इंटेंडिंग टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. सो वहाँ पे क्या होगा कि टीचर्स के जो एक्शंस होंगे या टीचर्स की जो एक्टिविटीज होंगी या टीचर्स की जो मैथडोलॉजीज होंगी, दैट वुड डायरेक्टली यील्ड इनटू द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और स्टूडेंट्स आउटकम्स. ठीक है, तो उसको जब हम इस तरह की जब हम रिसर्च करते हैं, तो देन वी यूज क्वालिटेटिव रिसर्च. सो दिस इज हाउ चूजिंग these are some kind of research questions or types of research questions. जब हम इस तरह की कोई चीज़ रिसर्च कर रहे होंगे, तो फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच हम यूज़ करेंगे. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस, यस प्लीज यू कैन आस्क.
Anybody has any questions? Or should we move on? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं जब ये टेक्स्ट पढ़ रहा था तो इसमें एक जगह आया है कि हम इसमें जो वो क्वांटिटेटिव में था, आई थिंक मैं लेट हो गया हूँ इस वजह से, बट उसमें था लेट मी लिटिल बिट Yeah, you can review it. You can review it. या आई कैन रिव्यू इट and I can find that specific point. All right. Meanwhile, Alian finds out the question. If anybody has Yes, any sir. question, please. I find Yes. it. I find it. Qualitative में ही मैं बात कर रहा हूँ कि Okay. उसमें एक जगह पे आया था कि imposing letting patterns emerge from the data rather than imposing pre-existing theories. तो सर pre-existing theories को qualitative में यूज नहीं किया जा सकता क्या? यस एग्जैक्टली यही तो इसकी पॉइंट है कि जब हम डेटा को अलाउ करते हैं कि जो भी डेटा से आ रहा है हम उसको उसके ऊपर रिलाई करेंगे, ना कि जिस तरह क्वांटिटेटिव में होता है कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस होती है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम एक फिक्स्ड एक्सेस में मूव कर रहे होते हैं इन आवर रिसर्च. बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च वी आर फ्लेक्सिबल टू एवरीथिंग दैट डेटा प्रेजेंट्स टू अस. ठीक है. अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है, अगर द डेटा इज नॉट रेलेवेंट टू अस वी डू नॉट यूज इट. राइट. अगर जो फॉर एग्जांपल कुछ हमने क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किया इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, हमने क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किया और क्वेश्चनर में कुछ जो क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया. ठीक है. तो उन पूरे के पूरे उस पार्टिसिपेंट के सारे क्वेश्चंस के डेटा को हम एक्सप्लेन कर देते हैं बिकॉज दैट इज वायलेटिंग आवर कंडक्ट ऑफ द रिसर्च. ठीक है. तो वो जो क्या कहते हैं उसके अंदर एरर क्रिएट करता है एनालिसिस के अंदर. ठीक है. तो इसलिए फिर हम उन सारी की सारी डेटा को क्लियर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम आवर रिसर्च. ठीक है. तो सिमिलरली ऑन द अदर साइड क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता. क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी प्रेजेंटर जिस भी क्वेश्चन का आंसर देता है या नहीं भी देता, तो हम वी कीप देम एज इट इज एंड देन वी एनालाइज देम एज दे आर. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. So qualitative research lets the data give the different perspectives, different patterns, and they do not rely on existing presupposed perspectives or presupposed results. I hope I'm clear. Alian? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All right. Thank you, Alian. Anybody has any questions? We can move forward. Otherwise, this is time is so late. Like it's 5:11. हमें पता ही नहीं चला in discussions. तो Very excellent discussion. yeah, it was really good discussion. Obviously, we were quite engaged into it, and we couldn't actually realize the time. So thank you so much, everyone, for being here, and inshallah, see सर you एक लास्ट क्वेश्चन है. Yes. You can ask. कोई question. सर ये भी अगर आपके उसमें रोड मैप में हो, आपके आउटलाइन में हो, आगे अगर आपने बताना हो तो जब हम आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं तो पीएचडी के लिए कैटेगरी दी जाती है कि या तो डब्ल्यू कैटेगरी के 2 होने चाहिए या आई थिंक एक्स वाई जेड. डब्ल्यू का आई थिंक 1 होना चाहिए या एक्स के 2 होने चाहिए. ओके. एक्स के 2 होने चाहिए या वाई के 2 होने चाहिए? एक्स के मैंने तो सुना एक्स के होने चाहिए. ओके. All right. So you're talking about foreign PhDs? नहीं नेशनल में आई थिंक मे बी एचईसी का मे बी शायद वाई हो, बट मैंने यही सुना है कि एक्स के 2 कहते हैं और डब्ल्यू का 1 कहते हैं. उसमें सर होता ये है कि जब हम वो आर्टिकल या वो थीसिस लिखने लगे तो उसमें हमें जो डिज़ाइन डेवलप करना होता है वो ऐसा डिज़ाइन डेवलप करना होता है कि जो कि रिसर्च हमारी वर्थ कंट्रीब्यूटिंग भी हो और उसमें जो हमारा डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसके लिए आमतौर पर आजकल मिक्स मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि जो कमियां इसमें हैं, क्योंकि जनरलाइज तो कर लेते हैं हम क्वांटिटेटिव में, बट उसकी जो रिलायबिलिटी या वैलिडिटी होती है वो इस बेस पे रिजेक्ट हो सकती है कि उसमें बायसनेस हो सकती है, क्योंकि हम उसमें चेंजिंग भी तो करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं लोग. तो उसको कंप्लीट करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए, मोर रिलायबल वैलिड बनाने के लिए हम मिक्स मेथड करते हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव को भी ऐड कर देते हैं. अगर वो दोनों रिजल्ट्स एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हो तो फिर हमारी वो रिसर्च एक वर्थ कंट्रीब्यूटिंग रिसर्च कहलाती है. तो मैं खुद भी, मेरा एक थीसिस है, मैं एमफिल कर रहा हूँ, तो उसमें जो है मैंने डिज़ाइन, जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा अपना, तो उसमें मैंने जो डिज़ाइन डिसाइड किया वो मिक्स मेथड की है. बट उसमें लेकिन ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. एमफिल लेवल के लिए, ये पीएचडी के लिए तो करना चाहिए, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है आपके पास, लेकिन इसमें ये टाइम टेकिंग है. अगर आप इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और कहते हैं कि उसमें डिज़ाइन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, रादर देन जस्ट यूजिंग मिक्स मेथड क्वेश्चनर और सम स्पेसिफिक केस स्टडी और दिस काइंड ऑफ वन साइडेड अप्रोच. यू हैव टू गो फॉर मिक्स मेथड अप्रोच एंड विद अ स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन. तो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उसका ये है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है कि मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए आपको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के लिए, और इस तरह की जो इंप्रूवमेंट्स चेक करनी होती हैं आपने,
लेकिन ये है कि ये कंसीडर ज़्यादा किया जाता है। तो मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपके इसमें आउटलाइन में ये चीज़ है कि हमने मिक्स मेथड को प्रेफर करना है या हम वन साइडेड एक चीज़ को भी लेके चल सकते हैं। साइकोलॉजी में आमतौर पे ये होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा होती है, एजुकेशन में क्वांटिटेटिव ज़्यादा देखी गई है। तो बीएड भी मैंने किया हुआ है, उसमें भी एक ब्लेंडेड लर्निंग पे मैंने किया था। तो जस्ट ये है कि आपने ये भी हमें गाइड करना है कि ज़रूरी नहीं है कि मिक्स मेथड को लेके चलें, क्योंकि वो चैलेंजिंग भी बहुत बन जाता है, ठीक है? तो किस तरह हम अगर एक साइड पे रहें तो उसको हम किस तरह मज़ीद वैलिड एंड रिलायबल बना सकते हैं ताकि वो एक कंट्रीब्यूटिंग रिसर्च भी बन जाए, ना कि जस्ट ये है कि वो रिजल्ट इंटरप्रेट हो। रादर के ये डिमांड नहीं करती रिसर्च हमसे कि हमारे रिजल्ट्स या हाइपोथेसिस जो हम अज्यूम कर रहे हैं वही आने चाहिए। लेकिन ये है कि फिर भी इन चीज़ों को टैकल करना है, वो कैसे करना है और हमने क्या आइदर डाटे को चेंज करना है या फिर हम अपने वो जो मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के उनको मज़ीद अच्छा करें ताकि हम डाटा अच्छा रेलिवेंट फाइंड कर सकें, रिजल्ट्स हमारे अच्छे आ सकें, एक्यूरेट जैसे हम डिज़ायर करते हैं। आमतौर पे ये होता है कि बच्चे जाते हैं क्वेश्चन वो करवा के फिल करवा के आ जाते हैं, जिसमें बच्चों को पता नहीं होता उसने येस पे भी लगाया होता है टिक, उसने नो पे भी लगाया होता है, सेम क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाए। तो इन चीज़ों को भी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं सर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और ये सरफेस लेवल की चीज़ें फिर भी अंडरस्टूड होती हैं। ओके ओके, अब मुझे समझ आ गई आपकी। देखें, द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिशिंग अ रिसर्च इन अ गुड जर्नल इन डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल इज कि हम हम रिसर्च करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पाकिस्तान, तो वी मैनिपुलेट द डेटा एट मल्टीपल स्टेजेस इन रिसर्च, ठीक है? और हम वी ट्राई टू डू ट्राई टू वैलिडेट आवर हाइपोथेसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है? और इसके लिए फिर वी समटाइम्स रिसर्चर्स ट्राई टू टेक क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च में देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इट इज कंपैरेटिवली लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन क्वांटिटेटिव रिसर्च। यस, तो ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है, वो बहुत टफ होती है। ट्रांसक्रिप्शन करनी है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन करनी है, उसमें थीम्स एनालाइज करनी है, फिर अप्रोप्रिएट कैटेगरीज बनानी है, फिर कोड्स बनाने हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेरियस complexities in the process of qualitative research. So the point is कि हम सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेप्स को क्या करते हैं, बाईपास करते हैं एंड वी डायरेक्टली गो टू रिजल्ट्स। और फिर हम रेंडमली कोई सैंपल ट्रांसक्रिप्शंस में से हम क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट्स में से कुछ रेंडमली जैसे वर्बटम्स निकाल करके पेस्ट कर देते हैं अपनी एनालिसिस में, एंड बताते हैं कि ये यहाँ पे ये स्टूडेंट फलां बंदे ने कहा है, तो इसका मतलब ये हमारा थीम बना और ये हमारा जो है वो इसका पर्पस ये है या इसका मकसद ये है या इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। So we bypass a lot of things in research in Pakistan. That's one of the reasons that we most of the times doesn't get approved by good journals, or this is the dilemma of Pakistani academia. So inshallah we will cover that, and my purpose of teaching you when to choose which methodology was this कि आपको पता हो कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा रिसर्च क्वेश्चन किस टाइप का है, और मुझे अब इस रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी रिसर्च अप्रोच चूज करनी चाहिए। अब क्योंकि हमने रिसर्च अप्रोचेस सो फार डिस्कस की हैं, तो आगे हम जाएंगे जब, तो वी विल बी डिस्कसिंग कि मुझे किस तरह के रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी रिसर्च डिजाइन चाहिए, तो वो फिर हम आगे जाके उसको डिसाइड करेंगे कि डिजाइन कौन सी होगी, ठीक है? इंशाल्लाह कल का जो हमारा सेशन होगा। तो द पॉइंट इज कि आपको अगर ये पता हो कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन मुझसे क्या डिमांड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं कौन सी अप्रोच यूज करूंगा, और फिर उस अप्रोच अंदर मेरी डिजाइन क्या होगी, तो दैट इज वेयर वी डू द थिंग्स राइट, ठीक है? अदरवाइज फिर हमें मोस्टली ये पता ही नहीं होता, और फिर हम ऐसे रिसर्च करके ढम करा करके दे देते हैं। हम नॉर्मली रिसर्च में क्या लिख देते हैं कि मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव यूज की तो बस क्वालिटेटिव यूज की, मैंने क्वांटिटेटिव यूज की तो मैंने क्वांटिटेटिव यूज की, और फिर हम आगे मिक्स मेथड किए तो मिक्स मेथड, उसके आगे हम कुछ बताते ही नहीं है कि भाई मैंने ये क्यों की, मिक्स मेथड चूज की तो क्यों की, मैंने क्वालिटेटिव यूज की तो क्यों की। सो वी डू नॉट आंसर दैट व्हाई इन आवर रिसर्च मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड दैट्स वेयर वी डू द थिंग्स रॉन्ग, ठीक है? फिर हमारा एग्जैक्टली, एंड देन वी डू नॉट गेट एक्सेप्टेड बाय गुड जर्नल्स, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि क्या मसला है मेरी रिसर्च के साथ, वेदर इट इज डेटा, वेदर इट इज व्हाट। तो इट इज नॉट ऑलवेज डेटा, इट इज ऑलवेज methodology. When you choose appropriate methodology, whether your research is impactful or not, if you have appropriate methodology for your research questions, then your research can be accepted by any journal, any good journal. Clear, Baba? Yes. Okay, thank you sir, extra time with you. Yeah, all right. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for joining us today. And it was really, really great discussion. And I really like you people to participate more into the classroom so that we can have enjoying and wonderful sessions ahead. Thank you so much. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.